انہوں نے معمول کے مطابق ہاتھ منہ دھویا، کپڑے بدلے اور صحن میں پیچھے تخت پر گاؤ تکیے سے ٹیک لگایا۔ ساجدہ بیگم بے چینی سے انہیں دیکھتی رہی کہ وہ کب فارغ ہوں گے۔ جیسے ہی انہوں نے گاؤ تکیے سے ٹیک لگائی وہ فوراً آگے بڑھی۔ کھانا لے آؤں؟ نہیں نیک بخت، پہلے تو مجھے وہ خبر سنا دو جسے سنانے کو تم بے چین ہو۔ شوہر صاحب مسکراتے ہوئے گویا ہوئے۔ 40 برس کا ساتھ تھا، دونوں ایک دوسرے کے مزاج کے سارے موسم اچھی طرح جانتے تھے۔ آج بھی بیگم کا چہرہ دیکھتے ہی سمجھ گئے کہ کوئی بات ہے جسے لبوں پر لانے کو وہ بے قرار ہے، اور یہی ہوا۔ وہ جھٹ سے پان دان گھسیٹ کر ان کے سامنے بیٹھ گئی۔ یہ بھی ان کی ایک خاص ادا تھی۔ اب وہ کھٹ کھٹ سروتا چلا کر چھالیاں کترتی جاتی اور محلے بھر کی خبریں سناتی جاتی۔ ایک ہاتھ میں سروتا، دوسرے ہاتھ میں چھالیاں لے کر وہ شروع ہو گئی۔ کونے میں بچل صاحب ہے نا، ان کے گھر بہو آئی ہے۔ کس کی بہو؟ ارے بھائی ان کی اپنی بہو، سب سے چھوٹے بیٹے کی بیوی، نکاح کر کے کسی لڑکی کو گھر لے آیا ہے۔ اب کہ انہوں نے واضح اور صاف لفظوں میں بریکنگ نیوز سنائی۔ اچھا پھر ولیمہ کب ہے؟ اے لو تمہیں ولیمے کی پڑ گئی۔ ساجدہ بیگم نے انہیں گھورا۔ پیار محبت شادی بیاہ ایک کھیل مذاق بن کر رہ گیا ہے۔ ماں باپ کی، خاندان کی عزت، کسی بات کی کوئی شرم، کوئی لحاظ نہیں۔ اب جو بھی سن رہا ہے تھو تھو کر رہا ہے۔ ساجدہ بیگم کے ہاتھ اور زبان دونوں ایک ساتھ چل رہے تھے۔ ہمارے محلے میں یہ تیسرا کیس ہے، کوئی وبا پھیلی ہوئی ہے کیا؟ شوہر مسکرائے۔ ارے یہ سب انہی چیزوں کا کمال ہے۔ موبائل، کمپیوٹر، کیبل بیڑا غرق کر کے رکھ دیا۔ ہر کوئی پیار کے بخار میں مبتلا ہو کر والدین کا نام روشن کر رہا ہے۔ وہ کھٹا کھٹ سروتا چلا رہی تھی، جیسے اس سے چھالیاں نہیں بلکہ نئی نسل کا گلا کاٹ رہی ہوں۔ اللہ رحم کرے سب پر۔ ویسے پکایا کیا ہے؟ شوہر نے پوچھا۔ دال پکائی ہے۔ ارے نیک بخت، ہفتہ دال منا رہی ہو کیا؟ پہلے چنے کی دال، پھر مسور کی، اب ماش کی دال۔ شوہر صاحب تو بلبلا اٹھے۔ یہ تو میں کیا کروں؟ پتا تو ہے تمہیں، گھٹنوں سے لاچار ہوں، مجھ سے نہیں جایا جاتا بازار۔ گوشت قیمہ کہاں سے لاتی؟ اور چلو کسی سے منگوا بھی لوں تو اتنا روکڑا کہاں سے لاؤں؟ تمہاری وہ ذرا سی پینشن اونٹ کے منہ میں زیرہ، جو نوکری کر رہے ہو اس کی تنخواہ میں یہ دال روٹی بھی عزت سے مل رہی ہے، غنیمت ہے۔ وہ کھٹا کھٹ سروتا چلاتے ہوئے بولی۔ اچھا نیک بخت، اللہ تمہارے شوہر کو سلامت رکھے، جو دال دلیا ہے وہی لے آؤ۔ انہوں نے ایک ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے گاؤ تکیے سے پھر ٹیک لگا لی۔ بیگم صاحبہ کو کھانا گرم کرنے اور لانے میں 10-15 منٹ تو ضرور لگتے۔ اب وہ گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کے کھڑی ہوئی تھی۔ جب تک کھانا گرم کر کے لائیں اور تخت پر ٹرے رکھی وہ تکیے سے ٹیک لگائے ایک جھپکی لے چکے تھے۔ اے سنو میاں، سو گئے ہو کیا؟ ہاں کیا ہوا؟ نے ایک دم سے ہڑبڑا کر اٹھے۔ کھانا کھا لو۔ ہاں ذرا ہاتھ منہ دھو آؤں۔ وہ آنکھیں ملتے ہوئے تخت سے نیچے اترے۔ آپ کیا اپنے صاحبزادے کے ساتھ کھائیں گی؟ انہوں نے پہلا لقمہ منہ میں رکھا۔ نہ بھائی، اب اتنی دیر انتظار نہیں ہوتا مجھ سے، دوائی کھانی ہوتی ہے۔ میں تو کھانا اور دوا دونوں کھا کر فارغ ہو گئی۔ وہ بے نیازی سے بولی۔ یاد ہے شادی کے شروع دنوں میں رات 12 تک تم میرا انتظار کرتی تھی۔ جب میں آتا تھا تو دونوں مل کر کھاتے تھے۔ شوہر صاحب کھانا کھاتے ہوئے پرانی سنہری یادوں میں کھونے لگے۔ ہاں وہ بھی ایک دور تھا، قناعت اور بے فکری کا، جب نہ تو یہ کم وقت الٹی سیدھی بیماریاں تھیں نہ نئے مسائل۔ اب تو بس کل میں ذرا بچل صاحب کے ہاں ہو آؤں، ذرا دیکھ کر تو آؤں کیسی لڑکی ہے۔ سامنے والی اپا دیکھ کر آئی ہیں، بتا رہی تھی بڑی خوبصورت ہے، بالکل انگریزوں جیسی نیلی آنکھیں، سنہرے بال، خوب گوری چٹی دبلی پتلی۔ ارے بھلیے لوگے، نیلی کیا، ہر رنگ کی آنکھیں بازار میں عام دستیاب ہیں۔ جس رنگ کے جو لینز لے لو، اور سنہرے بال ہیئر ڈائی کا کمال بھی ہو سکتے ہیں، مگر خیر ممکن ہے کہ قدرتی حسن ہی ہو، کچھ تو ہوگا، یوں ہی تو کوئی دیوانہ نہیں ہو جاتا نا۔ بیگم صاحبہ بولی۔ اللہ جانے یہ لوگ بیٹے بہو کو رکھیں گے بھی یا نکال دیں گے۔ سامنے والے پڑوسی کے گھر جب ان کا بیٹا لے کر آیا تھا تو انہوں نے اپنے بیٹے کو گھر سے ہی نکال دیا تھا۔ ساجدہ بیگم نے خود کلامی کی۔ سوئی ابھی تک وہیں پر اٹکی ہوئی ہے۔ شوہر صاحب نے من ہی من میں بولا، مگر وہ تو 6 مہینے بعد واپس بھی آ گیا تھا، ایک بیٹا بھی ہو گیا ہے اب تو، جیسے کوئی بات ہی نہیں۔ وہ خود سے پھر سوال اور جواب میں مگن ہو گئی۔ پان لگاؤں؟ نیکی اور پوچھ۔ شوہر صاحب نے اخبار سے نظریں اٹھائے بغیر جواب دیا۔ توبہ ہے، ذرا سا کام، ایسے تھک جاتی ہوں جیسے پہاڑ کے پتھر توڑے ہیں۔ ذرا سانس قابو میں آئی تو وہ شروع ہو گئی۔ اسی لیے کہتا ہوں بہو لے آؤ، گھر میں آرام مل جائے گا تمہیں۔ شوہر صاحب نے مشورہ دیا۔ وہ بھنا گئی۔ ارے کہاں سے لے آؤں بہو کو؟ نکمے نکھٹو کو کون دے گا اپنی لڑکی؟ 1 مہینہ کام کرتا ہے تو 1 مہینہ آرام۔
ढंग से लग कर कुछ पैसे कमाए तो कुछ जोड़ जाड़ कर इसकी शादी करूं। एक अंडा वो भी गंदा, अच्छा भला वेल्डिंग का काम आता है, टिक के करे तो ठीक ठाक नोट कमा ले, मगर करे कौन? खुदा दे खाने को तो फिर कौन जाए कमाने को। साजिदा बेगम तो भरी बैठी थी, बस छेड़ने की देर थी। आज इतनी देर तक इतनी जोर से बजा कि बाप और बेटे दोनों के कान झनझना उठे। बेटा मन मौजी था और बहुत ही गुन्ना भी था। बाप की नसीहतें और माँ की डांट फटकार बड़ी शराफत और आराम से सर झुकाए सुन लेता, मगर करता वही था जो अपनी मर्जी होती। कहीं बात भी लगाऊं तो कहाँ, मोहल्ले में रिश्तेदारों में सब जगह तो साहब ने अपनी शोहरत का डंका बजा रखा है। भला चूंटियों भरा कबाब कौन अपने दस्तरखान पर सजाएगा। साजिदा बेगम शुरू हुई ऐसी कि बस वो बोलती रही और शोहर बेनियाजी से अखबार में मुंह दिए रहे। बेटा अंदर कमरे में था जहाँ इनकी आवाज़ साफ जा रही थी, मगर वो भी बला का ढीठ कान लपेटे अपने मोबाइल में ही मगन रहा। थक हार कर आखिर वो खुद ही खामोश हो गई। बच्चन साहब के घर आने से इनकी वाकफियत और सलाम दुआ अच्छी थी। अगले दिन इनके घर जा पहुंची, मगर नई दुल्हन घर में मौजूद नहीं थी। बहन बहुत अफसोस हुआ सुनकर, ये आजकल के बच्चे भी ना। बस साजिदा बेगम ने बच्चन साहब की बेगम से इजहार हमदर्दी किया। क्या करे बहन, हवा ही ऐसी चल पड़ी है, जवान औलाद के आगे हम बुढ़े क्या चीज़ हैं। बच्चन साहब की बेगम ने एक आह भरी, वैसे दुल्हन है कहाँ? अरे वो वलीमे का जोड़ा लेने गई है अपने मियाँ के साथ। वलीमे का? साजिदा बेगम हैरत से उछल पड़ी। बजाय बेटे बहू को घर से निकालने के तुम वलीमे की तैयारियां कर रही हो? हाँ, अब निकाल कर तो ले ही आया है, थोड़े से लोगों को बुलाकर खुद ही कर रहा है वलीमा। जो होना था वो हो गया, अब वह वेला में जाकर क्या हासिल। बच्चन साहब की बेगम की बातें साजिदा बेगम को तो बहुत अनोखी लग रही थी, मगर वो चुप हो गई। भला क्या कहती, जिनका बेटा बहू इनकी मर्जी घर से निकाले या वलीमा करे। खैर कुछ देर दुल्हन का इंतजार करने के बाद वो घर चली आई। अगले हफ्ते वलीमा है, वहीं देख लेंगे, उन्होंने सोचा। साजिदा बेगम कोई बहुत होशियार बाश बारीक बीन किस्म की खातून तो नहीं थी, मगर फिर भी कुछ दिनों से बेटे के साथ कुछ ऐसे वाकयात हो रहे थे कि वो ठटक जरूर गई थी। 5 मिनट में शेव और 10 मिनट में गुस्ल करने वाला सुस्त वजूद बेटा अब आधा घंटा महज शेव करने में ही लगा देता है। गुस्ल के लिए अब खुशबूदार साबुन और इम्पोर्टेंट शैम्पू गुस्लखाने की जीनत बन गए थे। कहाँ तो पहले सीधे सीधे मुंह धोकर नाश्ता करके ये निकल जाता था, अब बनने संवरने में ही कितनी देर लगा देता है। शेव के बाद आफ्टर शेव घर से निकलने से पहले खुशबूदार क्रीम बालों में जेल लगाकर बड़े तरीके से सेट करके आईने में हर तरह से अपना जायजा लेता। बॉडी स्प्रे करके फिर घर से निकलता। 2-4 नई पैंटें और शर्टें भी लाया था, और सबसे बड़ी बात ये कि पहले वो लगातार 4 महीने से काम पर जा रहा था, वो भी एक भी छुट्टी किए बगैर। साजिदा बेगम कश न खाती तो और क्या करती। शोहर से अपने शकूक का इजहार किया तो वो हंस पड़े। पहले जब वो ये सब नहीं करता था तब भी तुम्हें शिकायत थी, अब वो खुद को बदल रहा है तो क्या परेशानी है। मैं तो कहती हूँ कि ज़रूर कोई चक्कर है। कैसा चक्कर? मुझे तो लगता है किसी लड़की के चक्कर में है तुम्हारा बेटा। अरे बिला वजह के वहम पाल रही हो तुम। इस उम्र में सभी लड़के शौकीन होते हैं। शोहर साहब ने हंसकर मक्खी उड़ाई। और वो जो मुसलसल 4 महीने से नौकरी पर जा रहा है, एक भी छुट्टी किए बगैर, तो ये तो अच्छी बात है ना। इसे अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो रहा है। तुम्हें तो इस बात पर खुश होना चाहिए, बेकार में उल्टा सीधा सोचकर परेशान हो रही हो। आती सर्दियों की एक खुशगवार मीठी सी शाम थी। रात में पकाने के लिए कीमा भी भिगोया हुआ था। इसे छन्नी में डालकर न चढ़ने को रखा और खुद प्याज प्लेट छुरी लेकर तख्त पर आन बैठी। दरवाजे पर खटका हुआ और बेटे की आवाज़ आई, आज जल्दी आ गया तू। इन्हें फौरन यही ख्याल आया, इनका बेटा आया तो अकेला नहीं था, एक और वजूद भी इसके हमरा था। ये मेरी अम्मा है, सलाम करो। बेटे ने साथ खड़ी लड़की को बड़ी बेतकल्लुफ़ी से मुखातिब किया। अरे ये कौन है? साजिदा बेगम ने दोनों को हैरत से देखते हुए सवाल किया। अम्मा ये तुम्हारी बहू है, मेरी बीवी। बेटे ने दरिया को कूजे में बंद किया और वहीं तख्त पर बैठकर झुककर अपने जूते उतारने लगा। बहू बीवी? साजिदा बेगम एकदम हवन्नक हो गई। 1 मिनट ठहरो अम्मा, अभी बताता हूँ सारी कहानी। वैसे पका क्या रही हो? आलू कीमा। वो इतनी हैरत में थी कि बेध्यानी में इसके सवाल का जवाब भी दे गई। अच्छा तुम ऐसा करो, ये बुर्का वगैरह उतार कर हाथ मुंह धो लो और सामने किचन है, आलू कीमा पकाना है, चीज़ें वहीं से ढूंढ कर निकाल लेना। बेटे ने सामने खड़ी लड़की के लिए हदायतनामा जारी किया और फिर माँ की तरफ मुतवज्जा हो गया।
अम्मा ये मुनीरा है, जहाँ मैं काम करता हूँ वहाँ करीब ही एक ब्यूटी पार्लर में काम करती है। हम एक दूसरे को पसंद आ गए, हमने शादी कर ली। बेटे ने बेहद मुख्तसर लफ्ज़ों में पूरी कहानी सुना दी। अच्छा, अगर तुझे कोई लड़की पसंद आ गई थी तो तूने माँ बाप से जिक्र तक करना गवारा ना किया, खुद ही चुप चुपाते निकाह करके ले आया। गैरों से भी बदतर हो गए हैं हम। साजिदा बेगम जज्बाती हो गई। ये बात नहीं है अम्मा, भला माँ बाप से बढ़कर दुनिया में और कौन होता है। मैंने पहले इसलिए नहीं बताया कि तुम राज़ी नहीं होती। वो क्यों भला? क्यों ना राज़ी होती मैं? क्योंकि इसकी पहले शादी हुई थी और फिर तलाक हो गई। बेटे ने बताया। हाय हाय, तलाकन से ब्याह कर लाया? तूने कोई ढंग की लड़की ना मिली तुझे शादी के लिए? गुस्से और रंज के मारे माँ की आवाज़ कांप रही थी। तो अम्मा मैं कौन सा गवारा हूँ, मेरी भी तो दूसरी शादी है। वो झुंझुला कर बोला। तेरी इन्हीं हरकतों की वजह से तुझे छोड़कर गई थी वो। तेरे जैसे निखट्टू को कब तक बर्दाश्त करती, वरना कितनी अच्छी थी बेचारी, अच्छी भली रोटियां पकाती थी। अम्मा तुम बिना फालतू बातें लेकर बैठ गई हो। बगैर नोट खर्च किए बहू घर आ गई, कदर कर लो और ऐश करो। ये प्याज कीमे के लिए है ना? गुमसुम नई लड़की ने साजिदा बेगम से पूछा। कीमे के लिए ही है ना? बहू ने प्लेट और छुरी उठाते हुए तस्दीक चाही। हाँ, कीमे के लिए ही है। साजिदा बेगम ने बेबसी से इसे देखा। कोई सुनेगा तो क्या कहेगा, थू थू करेगा। हाय मेरे निखट्टू बेटे, ही क्या किया तूने? मोहल्ले वाले, रिश्तेदार, जानने वाले कैसी हंसी उड़ाएंगे, लोग लानत मलामत करेंगे। सोच सोच कर इनकी आंखें नम होने लगी। पूरे घर में मसाला भूनने की लजीज खुशबू फैल रही थी। जब शोहर साहब घर में दाखिल हुए, कहने लगे बेगम आज तो बड़ी लजीज खुशबू आ रही है घर में। हाँ, तुम्हारी नई नवेली बहू जो खाना पका रही है। क्या? वो परेशान खड़े हो गए। इसे कह दो एक हफ्ते के अंदर अंदर कहीं और ठिकाना लगा ले अपना। इन दोनों को इस घर में रखकर मैं लोगों के मजाक और तंज का निशाना नहीं बन सकती। अगले रोज़ वो रूहानसी होकर अपने शोहर से बात कर रही थी। अच्छा ठीक है, जैसे कहोगी वैसे ही होगा। शोहर साहब ने अपनी बीवी की दिलजोई करने की कोशिश की। ठीक है अम्मा, देख लेता हूँ कोई और घर कराए का। अब जो ये एक हफ्ता है इसे तो सुकून से गुजारो, फिर जैसा तुम कहोगी वैसा ही होगा। सुबह नाश्ते में खूब सारी परतों वाले नरम गरम पराठे, सालन, कभी अचार, कभी दही तो कभी अंडे के साथ तख्त पर बैठे बैठे मिल जाता था। दोपहर का खाना, सहपहर की चाय, रात का दस्तरखान, इन्हें अब किसी शय के लिए तरद्दुत नहीं करना पड़ता था। पूरे घर की सफाई भी हो जाती। गुसलखाना व बर्चीखाना सब धुल धुला के साफ सुथरे चमकते रहते। आज 5वां दिन था। बहू ने मशीन लगाई हुई थी। अरे बीबी, एक बात तो बताओ। पहली बार अपनी बहू को मुखातिब किया। जी कहिए। पहले मियाँ से तलाक क्यों ली तुमने? निखट्टू था, ना काम ना धंधा, हर वक्त घर में पड़ा रहता था। रोज़ रोज़ की किलकिल से तंग आकर छोड़ ही दिया मैंने। अरे तो ये कौन सा जिम्मेदार शख्स ढूंढा है तूने? ये भी एक नंबर का निकम्मा है। 4 दिन लगकर कहीं काम नहीं करता। दूसरी बार भी धोखा खा लिया तूने। वो बिलबिला कर बोली। नहीं नहीं, अब ऐसी भी बात नहीं है। पहली बात तो ये कि 4 दिन ही सही, मगर आपका बेटा काम के लिए घर से निकलता तो है ना। वो कम वक्त तो 4 दिन की जहमत भी नहीं करता था। खुद ही आपके बेटे पर जिम्मेदारियां पड़ेंगी तो 4 की जगह 6 दिन काम करने लग पड़ेगा। मुझे इतना तो भरोसा है। और ये जो तेरे भरोसे पे पूरा ना उतरा तो? सास ने सख्ती से पूछा। अल्लाह मालिक है। मैंने ब्यूटिशियन का कोर्स किया हुआ है, सिलाई भी अच्छी आती है। घर बैठे कुछ ना कुछ तो कर ही लूँगी। वो कपड़े खंगालने बैठ गई। जब इतना हुनर तेरे हाथ में है तो पहले मियाँ का साथ दे देती। ख्वामख्वाह ही तलाक का टीका लगवा लिया माथे पे अपने तूने। साजिदा बेगम बेधड़क होकर बोली। इस वक्त कहाँ थे ये हुनर मेरे हाथ में? सास साहिबा, तलाक के बाद ही तो अक्ल आई कि कुछ ना कुछ हुनर अपने हाथ में भी होना चाहिए ताकि किसी की मोहताजी ना हो। वो माथे पे बल लाए बगैर इनके दिल शिकन सवालात के जवाब दे रही थी। मेके में कौन कौन है तेरे? 4 भाई हैं, 2 बहनें, सब शादीशुदा हैं। माँ बाप फौत हो गए हैं। जब इतने सारे लोग थे तेरे पिछले घर में तो वहीं से इज्जत से रुखसत होकर आ जाती ना। ये कैसे शादी कर ली तूने भाग के? दुनिया सुनेगी तो क्या कहेगी? साजिदा बेगम भी दिल में जो बात आती थी जुबान पर लाने में ज़रा हिचकिचाहट महसूस न करती, चाहे बात कड़वी हो या मीठी। ऐसी बात नहीं है। भला कौन लड़की होती है कि वो घर वालों की मर्जी और दुआओं के बगैर घर की दहलीज फैलाएंगे। मैंने घर में बात की थी, आपके बेटे के बारे में अपने भाइयों से मिलवाया था। भाई और भाभीयों के ना हाथ को शादा है ना दिल। उन्होंने साफ कह दिया जो करना है अपने बलबूते पर कर लो, हमारे पास कुछ नहीं है, ना खर्च करने के लिए ना देने के लिए। बड़ी बहन और बहनोइयों ने सर पर हाथ रखा। निकाह इन्हीं के घर में हुआ था, वहीं से रुखसत होकर आई हूँ।
वो धीरे से बोली थी और आवाज़ में हल्की सी नमी घुली हुई थी। अच्छा? साजिदा बेगम ने बेयकीनी से इसे देखा। अरे मैंने कहा सुनते हो? उन्होंने अपने मखसूस अंदाज में अपने शोहर को पुकारा। हाँ बेगम, बस ये मैच ख़त्म ही होने वाला है, अभी आता हूँ। पहले इस खेल कूद से फारिग हो लो, फिर तुम्हें कहूँगी। अरे बस ख़त्म ही हो रहा है। लो भाई, पाकिस्तान जीत गया। भाई बहू, पाकिस्तान मैच जीत गया है। इसी खुशी में एक कप चाहे तो पिला दो। अभी पिलाती हूँ अब्बू, बस 5 मिनट। 2-3 रोज़ बाद तो बहू बेटा चले ही जाएंगे तो सोचता हूँ चाय ही पी लूँ बहू के हाथ की। शोहर साहब ने अपनी बेगम को सफाई पेश करते हुए कहा, एक बात कहना थी तुमसे। हाँ कहो। मैं सोच रही थी क्यों ना हम अपने बेटे का वलीमा कर दें। थोड़े से अफराद बुलाकर एक छोटी सी तकरीब दे देते हैं। मगर तुमने तो अपने बेटे और बहू को 1 हफ्ते का टाइम दिया हुआ है घर खाली करने का। बस क्या करें, इकलौती औलाद है। अब खुद से कैसे अलग कर दूं मैं इन्हें। दोनों अकेले कहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे? और फिर हम अपने बेटे के बगैर कैसे रहेंगे? और फिर सच्ची बात यह है कि घरदारी मेरे बस की बात नहीं रही। सोच लो बेगम, लोग क्या कहेंगे? दुनिया वालों का सामना कर लोगे? शोहर साहब ने मुस्कुराते हुए पूछा। अरे बाहर में जाए लोग, मुझे क्या किसी से? यहाँ कौन पारसा है? सबके घरों की सब कहानियाँ जानती हूँ मैं। और फिर जवान औलाद के साथ समझौता तो करना ही पड़ता है ना। उन्होंने ताइदी नज़रों से शोहर की तरफ देखा। ठीक कहा तुमने, जवान औलाद के साथ समझौता तो करना ही पड़ता है। अब की बार शोहर साहब भी मुस्कुरा दिए। नई बहू ने भी ससुर को चाय का कप पकड़ाते हुए एक सुकून की ठंडी सांस ली कि शुक्र है आखिर सास और ससुर ने इसे कबूल कर लिया।